Hello students, my name is Renuka Joshi and I am in front of you taking the topic article of our English language. Now article is a very common topic that we discuss a lot. We tend to study a lot, but it's that we get confused or we get a lot of commotion with this topic. So I just want to tell you that there is no such thing where you need to be confused about this topic, because it's quite easy and it's very easy to understand this topic. So today we will be discussing this topic in such an easy term that you will not be confused again. So okay, let's just start it. Now first of all, we just have to understand that what is article. देखिए आर्टिकल क्या होते हैं. आर्टिकल हमारे पास में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की वो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक नाउन से पहले लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करती हैं. और हमारे पास में 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एंड दोज आर्टिकल्स आर ए एंड द. तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास में सिर्फ 3 आर्टिकल्स होते हैं, वो है ए, एन और द. अब इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे ए और एन दोनों साथ में यूज किए जाते हैं, दोनों की यूजेस सेम होते हैं, बट एक डिफरेंट रूल होता है जिनसे ये यूज किए जाते हैं. अदरवाइज द का कंप्लीटली जो यूज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसे हम अलग जगह यूज करते हैं. सो लेट्स जस्ट सी कि कितने टाइप्स में इसे डिवाइड किया गया है आर्टिकल को. Okay, now here you can see that articles are divided into 2 forms. The first one is definite article. What is definite article? First of all, we include the in definite article. Now, definite means whenever we add the to a thing or a noun or any word, so it gives a definite meaning. That means the things that are unique, बहुत unique होते हैं, and you cannot find the other one like that. So we use the before those kind of nouns or before those kind of words. Indefinite article, we count a and an into indefinite articles because they will be used according to the number of a noun. Or one more reason you can say that a and n can be used with many words, with the unlimited words and unlimited noun. There are unlimited rules of using a and n, but there are just some specific rules or some specific noun where you can use the. Alright, so let's just move and see about the article a, as where to use a, how to use a. So a, first of all, use a when the next word starts with a consonant. पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ए हम कहाँ यूज करते हैं, जब आप किसी सिंगुलर यूनिट के बारे में, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर यूनिट, जब एक ही नंबर की बात की जाती है उसके साथ में हम ए का यूज करते हैं. अगर आपकी जो नाउन है वो प्लूरल है या एक से ज्यादा है तो उसके साथ में हम ए का यूज नहीं करते. इन शॉर्ट, आई वुड टेल यू दैट ए डिनोट्स द नंबर 1. Wherever you are using a, that means it's saying that 1. Alright, so let's just go with the examples. Okay, first I told you that we have to use a with the consonant. Now, यहाँ पे consonant कौन से होते हैं, vowel कौन से होते हैं? Obviously, you might be knowing that, but we will just go through a quick revision that we have 5 vowels in English, which are a, e, I, o, and U, right? So the letters rather than these numbers, or the letters except these letters, are called consonants. या हिंदी में इन्हें हम व्यंजन बोलते हैं. स्वर और व्यंजन हिंदी में पढ़ा होगा, तो ए, आ, ई, ये हमारे स्वर होते हैं. सिमिलरली इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी and W, X, Y, Z. Now these all letters are called consonants. Okay, so जब भी हम a का यूज करते हैं, आपको पहली बात ध्यान में ये रखनी है कि जिस नाउन के साथ आप a का यूज कर रहे हैं वो नाउन आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए. और दूसरा आपको जो रूल याद रखना है a का यूज करते हुए वो ये है कि आपका जो वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए. ओके, अगर आपका जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और सिंगुलर यूनिट का है, उसके साथ में हम ए का यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो एग्जांपल्स देखते हैं. गर्ल,
we have a word here which is girl. Now you obviously know that girl is starting with G and G is a consonant. alright, so पहली बात हमें पता चली कि ये G consonant से start हो रहा है. ओके, एंड देन एक ही गर्ल के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा गर्ल के बारे में बात की जा रही होती तो मैं यहाँ पे s लगाती अपने नाउन के साथ में उसे प्लूरल बनाने के लिए, पर यहाँ पे नाउन के साथ s नहीं लग रहा, उसका मतलब एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे a लगाना है appropriate. ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल आपका है बस. बस स्टार्ट हो रहा है b से, उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है एंड b हमारा कॉन्सोनेंट है, साउंड कॉन्सोनेंट है. यहाँ पे सिंगुलर यूनिट है, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो बसेस होता. सो सिंगुलर यूनिट है, इसलिए हमने इसके साथ a का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉक. फ्रॉक इज स्टार्टिंग विद f and f is a consonant and it is a singular unit, so there's using a is appropriate with frog. Table starting with t which is a consonant, and we're not talking about tables, we are talking about one table, so it means it's correct to use a with it. अब देखिए इसको जब हम पढ़ते हैं, so we can say a girl, एक लड़की, और we can replace it with one girl. ए का मतलब मैंने आपको बताया कि ए का सीधा मतलब क्या होता है, वन. सो यू कैन से वन गर्ल, ए बस, वन बस, अ फ्रॉक, वन फ्रॉक, अ टेबल, one table. Alright, and the most important thing which you have to remember is that we use a and an article according to the sounds of the letters. हम सिर्फ लेटर्स देखकर ही यूज नहीं करते हैं. इट्स नॉट दैट कि आपने देखा कि कॉन्सोनेंट है तो वहां पे हमने ए लगा दिया, या फिर आपने देखा कि ए ई आई ओ यू में से कुछ आ रहा है, वॉवल्स आ रहे हैं तो हमने वहां पे एन लगा दिया ना. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव टू लुक एट द साउंड्स ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज समटाइम्स आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके वॉवल से स्टार्ट होते हैं पर उनमें जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट का आता है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं पर उनमें जो साउंड आता है वो वॉवल्स का आता है. इन दैट केस हमें एप्रोप्रिएट आर्टिकल उसके साथ में यूज करना होता है. सो आई होप आपको ए का यूज अभी तक समझ में आया होगा. ओके, लेट्स जस्ट गो थ्रू अ क्विक रिवीजन दैट ए हमारा जहां पे भी लगेगा वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले लगेगा, और जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने के साथ साथ हमारा सिंगुलर यूनिट भी होना चाहिए. अगर वो प्लूरल यूनिट है तो हम उसके साथ में ए का यूज नहीं कर सकते. Okay, so it is mandatory for the word to be a singular unit word, and it is mandatory to be starting for this word to be starting with a consonant letter. Okay, इसके बाद में नेक्स्ट ए का यूज कहाँ किया जाता है. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमें ए और एन का यूज साउंड्स को देखकर करना होता है. इट्स नॉट जस्ट दैट यू विल बी सीइंग दैट इट्स अ consonant letter, so we'll be starting a with it, or if it's a vowel we'll be starting n with it. I told you that you have to consider the sound of the letter. So it's saying before words starting in u and eu when they sound like u. Now in English we have some words which will be starting with u or e or eu, but उनका साउंड होगा अ या वॉवल साउंड ना होके उनका साउंड होगा य, और they will sound like यू. ओके, वॉवल साउंड नहीं होता ऐसे वर्ड्स का. हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, जो वर्ड है वो स्टार्ट तो हमारा वॉवल से हो रहा है पर उसके साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. इन दैट केस जब हमारे वॉवल से स्टार्ट होने वाली वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट होगी तो उसके साथ में हम एन का यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ में एन का यूज नहीं करेंगे. ओके, इन दैट केस व्हेन अ वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ वॉवल लेटर and it has a sound of a consonant, then we have to use a with the word. So here we are giving some examples. Okay, and the first example is a university. Now see, university is starting with u which is a vowel. u हमारा एक vowel है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है. अगर u का साउंड होता तो वहां पे हमारे पास साउंड आता अ का और ऊ का, बट वी आर सेइंग इट यूनिवर्सिटी. साउंड किसके पास कौन सा आ रहा है आपके पास, यू या य, ये वाला साउंड आ रहा है. सो इन दैट केस व्हेन यू आर हैविंग द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इन दिस वर्ड वी हैव टू यूज ए विद इट. आप अगर इसके साथ में एक एन का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग एन यूनिवर्सिटी, it's going to be wrong. All right, now next example is a European.
Again the word is starting with E, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका साउंड क्या है, य, which is y-o-u. So again we are getting a consonant sound with the word which is starting with the vowel. So we have to use a with it, not n. Another example is unit. Starting with u, vowel से start हुआ, but sound वापस से हमारे पास किसका आया, य का और u का. So यहाँ पे consonant sound आया, so we'll be using a with it. We cannot use n with the word which has a consonant sound. Alright, so I hope this idea is clear to you all. And after this we'll be moving to a next slide, where we will learn how to use n, or with what kind of a words we can use n. Alright, so use n with the next word start with a vowel. That's already I told you that if a word is starting with a vowel, we can use n with it. Now vowels कितने होते हैं? We have 5 vowels in English language. Those are a, e, i, o and u. आपका जो भी word है अगर वो इनसे start हो रहा है, and the most important thing is that if they are having a vowel sound, because लास्ट में हमने पढ़ा कि अगर कोई लेटर, अब अगर कोई वर्ड है वो स्टार्ट तो वॉवल से हो रहा है लेकिन उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है, तो हमें उसके साथ में ए का यूज करना होगा. इसीलिए अगर कोई वर्ड है वो स्टार्ट भी वॉवल से हो रहा है और उसकी साउंड भी वॉवल की ही आ रही है, मतलब ए, आ, ई, उ, इस तरह की उसकी साउंड आ रही है, वॉवल वाली साउंड आ रही है. ओके, इन दैट केस हम उसके साथ में एन का यूज करेंगे. देखिए ए के साउंड होती है ए, ई, और उ. सो अगर आपके पास में साउंड वॉवल वाली आ रही है तो हम उनके साथ में एन का यूज करेंगे, अदरवाइज अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उनके साथ में ए का यूज करेंगे. एग्जाम्पल वी आर गिवन हियर, एलिफेंट. एलिफेंट इज स्टार्टिंग विद ई. पहली बात वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, यस. सेकेंड चीज, आपके यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है? जब हम एलिफेंट बोलते हैं सो वी गेट अ साउंड ऑफ ए की साउंड आती है विच इज वॉवल ऑब्वियसली. सो हियर वी विल बी यूजिंग एन विद इट. अगर कोई भी वर्ड है जो स्टार्ट वॉवल से हो रहा है और उसकी साउंड भी वॉवल की है तो हम उसके साथ में एन का यूज करेंगे. ओके, इसका एक एक्सेप्शन केस ये भी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, पर उनका फर्स्ट लेटर मतलब वो कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है और उसके बाद वाले वॉवल से हम उन्हें प्रोनाउंस करना स्टार्ट करते हैं. सो इन दोस केसेस हम एन का यूज करेंगे. आगे स्लाइड में हम वॉवल एक्सेप्शंस देखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज एप्पल. एप्पल स्टार्ट हो रहा है ए, साउंड भी यही है तो यहाँ पे इसके साथ में एन का यूज. एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू पे अटेंशन एट इज दैट यहाँ पे ये सारे जो हैं ये सिंगुलर यूनिट की बात कर रहे हैं. इनमें से कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि प्लूरल हो. ठीक है, एन भी आपका आइडिया रिप्रेजेंट करता है 1. एन इज इक्वल टू 1. सो इफ यू कैन से 1 elephant, you can say an elephant, that's all equal. You can say an apple, you can say 1 apple, that's equal. An egg, again it's starting with E and it has a sound of A, so it will be like we'll be using N with it. And in the last example it's starting with O and O is a vowel. वैसे भी vowel है, sound भी vowel का आ रहा है, so in that case we'll use N with it. Alright, so I guess the idea of using N with the words is clear to you all. In the next slide we'll be looking at some the exceptions, exceptions or exceptional cases using N. अरे 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 zoom क्यों हो गई, move क्यों नहीं हो रही है? Okay, now use N when the next word starts with a mute H. Sometimes we have words which are starting with H but they don't have the sound of H.
H की साउंड, इफ यू हैव लर्न द फोनिक्स यू विल नो दैट द साउंड ऑफ H इज ह। तो जब भी ऐसे कोई वर्ड होगा जिसमें H तो H स्टार्टिंग का इनिशियल वर्ड होगा लेकिन उसमें H की साउंड नहीं होगी, वो H हमारा होता है साइलेंट। ऐसे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं? साइलेंट लेटर्स। सो वहां पे हमारा H होगा वो साइलेंट होगा और उसके बाद वाले वॉवल से हम उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं। सो उस केस में जब हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है तो उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? N का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव अ वर्ड R. How many of you actually pronounce it har or haver? Okay, so that pronunciation that if you are calling it haver or har, it's wrong. We have to pronounce it R. Okay, यहाँ पे H हमारा साइलेंट है और प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हुआ है OU से। ठीक है, OU वॉवल है, O हमारा इनिशियल है, O वॉवल है और उसके अलावा साउंड भी हमारे पास में O का ही आता है। सो इन दैट केस हमारे पास N का यूज होगा। एंड अगेन R हमारे पास में सिंगुलर यूनिट में आया है। अगर हमारे पास में R लिखा होता तो हम उसके आगे N या A किसी का भी यूज नहीं करते, क्योंकि N और A दोनों का यूज किया जाता है सिंगुलर यूनिट के केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड ऑनर। ऑनर अगेन स्टार्टिंग विद H, बट H क्या है यहाँ पे? साइलेंट। सो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन मेन होगा वो स्टार्ट किससे होगा? O से। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू दैट इसका साउंड इज नॉट O. द ओरिजिनल साउंड ऑफ इट्स इज O. Okay, so we'll not call it owner. Don't call it owner. We'll be calling it honor. Okay, so यहाँ पे O का साउंड आ रहा है, vowel साउंड आ रहा है, so we have to use N with it. Alright. So this idea of N and the exception of using N with the silent letters is clear. Then we'll be moving ahead to the next slide. Okay. Now in next slide, use indefinite article to refer to something for the first time. जब भी हम कुछ बात करते हैं और उसमें हमारे पास कोई ऐसी नाउन है जो सिंगुलर है और हम उसका पहली बार यूज कर रहे हैं उस सेंटेंस में, then we'll be using a indefinite article which is A और N. इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? A और N. तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई नाउन है वो सिंगुलर यूनिट की है और वो पहली बार यूज की जा रही है सेंटेंस में, तो उस केस में हम A और N का यूज करेंगे उस नाउन के साथ में। एग्जाम्पल दिया है, वुड यू लाइक अ ड्रिंक। ओके, सो ड्रिंक हमारे पास पहला ही सेंटेंस है, हमने उससे पहली बार पूछा है। अगर हम दोबारा पूछेंगे तो हम उसके साथ में द का यूज करेंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई टेल यू दैट लेटर। So for now, if you are using a noun for the first time in a sentence, we have to use an indefinite article with it, which is either N or A. Alright, so drink again starting with D, which is a consonant. So हमने उसके साथ में A का यूज किया है। अगर मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, would you like to have an apple? Although I've told you the answer already, but let's just go with the question again. Would you like to have dash apple? पहली बार पूछा जा रहा है, सेंटेंस में एक ही बार आ रहा है, and apple is starting with A, which is a vowel, so we have to fill N here. Okay. Next example, I have finally got a job. Okay, I have finally, ये जो यहाँ पे apostrophe लगा हुआ है इसका मतलब होता है पूरा I have. I apostrophe VE, it means it is I have finally got a job. So यहाँ पे job सेंटेंस में एक ही बार आ रहा है अगेन, एंड उससे पहले हमने ए का यूज किया है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पास में ए आएगा। ठीक है, ओके। Next rule, the second rule to use indefinite article is use indefinite articles to name the member of a group. अगर हमें किसी भी पर्सन का प्रोफेशन बताना होता है, like sometimes हम बात करते हैं कि मेरे मामा डॉक्टर हैं, मेरे मामा टीचर हैं, मेरे डैडी इज अ कंसल्टेंट है। सो उस केस में जब हम किसी ग्रुप के मेंबर की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल के प्रोफेशन की बात करते हैं, सो हम उससे पहले ए का यूज करते हैं। ओके,
ध्यान रहे, प्रोफेशन से पहले यूज नहीं करते, वो जो उसका काम है। ओके, लाइक व्हाट कैन वी से, लाइक इट्स अ डॉक्टर, ठीक है। सो हम डॉक्टर से पहले ए का यूज कर सकते हैं। डांसर, डांसर से पहले ए का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन क्या होता है, इट्स डांस, सो डांस से पहले ए का यूज नहीं होगा। ऑलराइट, इसी तरह डॉक्टर पोस्ट है, बट इसका प्रोफेशन क्या है, मेडिकल और मेडिकल्स, सो उससे पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो राहुल इज अ डॉक्टर, डॉक्टर से पहले हमने ए का यूज किया। शी वांट्स टू बी अ डांसर, डांसर से पहले हमने ए का यूज किया। शी एस्पायर्स टू बिकम एन इंजीनियर। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन हियर बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विद ई, साउंड भी वॉवल का आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एन का यूज किया है, ठीक है। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में हमारे पास में स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा था और साउंड भी कॉन्सोनेंट का था, तो हमने उससे पहले ए का यूज किया था। ऑलराइट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स उनके साथ में यूज होते हैं हमारे प्रोफेशन के साथ में, लेकिन प्रोफेशन के नाम से पहले यूज नहीं होते, उसमें जो हमारी पोस्ट होती है उसके साथ में हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ओके, आई विल नॉट से दैट आई एम द टीचर, नो, आई एम अ टीचर। ऑलराइट, सो आई होप ये वाला आपको जो रूल है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, here we have come to the definite article, and definite article कौन सा होता है, I have already told you and you all are already intelligent that you know that the is a definite article. So used to indicate a noun that is definite or has been previously specified in the context. द का यूज हम उस नाउन के साथ में करते हैं जिसकी अपनी जिसकी अपनी मेरिट्स होती हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, या फिर वो सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में प्रीवियसली यूज की गई है। ओके, ओके, लेट्स जस्ट सी, प्लीज क्लोज द डोर। ओके, आप डोर के यहाँ पे अपना एक स्पेसिफिकेशन है, अपनी एक क्वालिफिकेशन होती है, अपने डोर की एक सिग्निफिकेंस होती है वैसे, क्योंकि डोर घर में बहुत सारे होते हैं, एक ही डोर नहीं होता, ठीक है। सो उस केस में वी कैन नॉट से प्लीज क्लोज द डोर। अगर आप ए या एन का यूज करते हैं यहाँ पे, सो यू कैन नॉट से कि आप कौन सा दरवाजा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। प्लीज क्लोज द डोर, ऐसे तो घर में बहुत सारे दरवाजे हैं, सो कौन से दरवाजे को बंद करना है जाकर। सो इन दैट केस अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक चीज के लिए बोलना है, सो यू विल से प्लीज क्लोज द डोर। यहाँ पे द लगाते ही क्या हुआ, ये स्पेसिफाई हो गया कि आप जहाँ पे बैठे हैं उसी रूम के दरवाजे को बंद करना है। आई लाइक द बुक्स यू गिफ्टेड मी, यहाँ पे देखिए बुक्स का रेफरेंस यहाँ पे पहले आ चुका है, ठीक है। आई लाइक द बुक्स यू गिफ्टेड मी, यहाँ पे बुक्स ऑलरेडी जो है दिया हुआ है, पर यहाँ पे ओमिट है। ओके, आई लाइक द बुक्स, अगर मैं इसको दो सेंटेंसेस में लिखूं, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इसी को ब्रेक करके मैंने यहाँ पे लिखा है यू गेव मी द बुक्स एंड आई लाइक देम, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे इसके दो सेंटेंस बना दिए कि तुमने जो बुक्स दी थी वो मुझे पसंद आई हैं। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके हमने एक ही सेंटेंस बना दिया, तो बुक का ऑलरेडी रेफरेंस आ चुका है कहाँ पे, इस क्लॉज में, तो इसलिए हमने बुक्स के साथ में द का यूज किया है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, the is used to indicate a noun that a noun is unique. Okay, जब भी हम द का यूज किसी नाउन के साथ करते हैं तो उस नाउन के साथ में एक बात ये जुड़ जाती है कि वो नाउन अपने आप में यूनिक होनी चाहिए, और इस यूनिकनेस के साथ ही हम द का यूज करते हैं। सो प्रेज द लॉर्ड, नाउ लॉर्ड इज यूनिक, यूनिवर्स में या हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में गॉड इज सुप्रीम। तो जब भी हम गॉड या लॉर्ड का यूज करते हैं उससे पहले हम द का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड से पहले हमने द को यूज किया बिकॉज लॉर्ड और गॉड इज यूनिक। ओके, लॉर्ड और गॉड इज नॉट कॉमन। अगेन, ताजमहल एक हमारी प्रॉपर नाउन है, और ये नाउन अपने आप में यूनिक है बिकॉज ताजमहल इज द ओनली थिंग और दिस ओनली मॉन्यूमेंट, इसके अलावा वर्ल्ड में और कहीं भी ताजमहल नहीं है, कॉमन नहीं है ये चीज, तो इसलिए हमने इससे पहले
द का यूज किया है। ओके, याद रहे किसी भी पर्सन के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते। ऑलराइट, किसी भी पर्सन के नाम से पहले, चाहे वो मेरा नाम हो, आपका नाम हो, किसी किंग का नाम हो, किसी का भी नाम हो, उससे पहले हम द का यूज कभी भी नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ सेम ही हो गई ना। ओके, तो एक बार हम तीनों आर्टिकल्स का कंपैरिजन देखते हैं, तीनों को कंपेयर करके देखते हैं। ए एंड द। A is used in front of singular countable nouns, a person, element or a thing which are not specific. Again मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी proper noun से पहले, स्पेशली किसी भी पर्सन के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। I cannot say that the Renuka Joshi is teaching English. I'll say Renuka is teaching English. Okay? So प्रॉपर नाउन कोई भी होगा उससे पहले हम द का यूज, ए का यूज, एन का यूज नहीं करते। ए रेणुका जोशी, द रेणुका जोशी, एन रेणुका जोशी, नथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, इट शुड बी केप्ट विदाउट एनी आर्टिकल। देन ए का यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, ऐसी नाउन जो सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं। ओके, वी कैन नॉट से अ वाटर और अ राइस, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। हाउ विल यू काउंट राइस एंड हाउ विल यू काउंट वाटर? सो उन नाउन्स के पहले हम ए का यूज या एन का यूज नहीं कर सकते, उनके साथ में हमें किस आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ उन नाउन्स के साथ में यूज करना है जो कि आप काउंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन्स। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स के साथ में ए का यूज नहीं करते, क्योंकि ए रेफर करता है वन को। ऑलराइट, लेट्स जस्ट से वन बॉयज, हाउ वुड इट लुक? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, बोलने में भी गलत लग रहा है। तो एंड इफ यू आर सेइंग वन बॉय, वन गर्ल, वन टेबल, वन कैमरा, वन मोबाइल, दैट्स करेक्ट। सो इन सबके साथ में हम ए का यूज करेंगे जो कि सिंगुलर यूनिट होती है। इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड बी सी डी एफ जी एटसेट्रा, ए कम्स बिफोर द नाउन। अगर सिंगुलर है और स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट के साथ में, तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, अ कैट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डॉक्टर, अ हाउस, अ बाइक, अ बॉय, अ टेबल, इन सब के पहले हमने ए का यूज किया है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट से और सिंगुलर यूनिट है, प्लूरल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ए, n is used in front of singular countable nouns which are not specific. ऐसी nouns जो कि specific नहीं होती हैं but singular countable noun है। We don't use n before uncountable और plural nouns. Plural nouns के साथ में यूज नहीं किया जाता, uncountable के साथ में यूज नहीं किया जाता। n rice, n water. Okay? Then third is if a noun starts with a vowel sound. अगर एक noun है या एक thing का नाम है वो हमारी vowel sound से start हो रही है, a e i o u, या उसमें वॉवल साउंड है। अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर उसमें वॉवल साउंड है तो हम उसके साथ में एन का यूज करेंगे। एन एप्पल, एन एग, एन एंट, एन ऑरेंज, एन आर, एन आंट, एन ओल्ड मैन, एन अंकल, ये सब वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें साउंड क्या है? वॉवल का साउंड है। सो उससे पहले हमें एन का यूज करना पड़ेगा। Next, we use the in front of all nouns. It does not matter whether the noun are singular, plural, countable or uncountable. हम सारी nouns के साथ में the का use कर सकते हैं। the का use करते आपको ये नहीं देखना होगा कि वो singular होगा, plural होगा, countable होगा या uncountable होगा। To describe someone or something specific or unique. But एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप the जहाँ पे लगा रहे हैं आपका वो noun unique होना चाहिए, significant होना चाहिए और उस sentence में specific होना चाहिए। Okay? The earth unique है, the world obviously unique है, the air, the weather, the moon, the president is a position, उससे पहले हम the का यूज करते हैं। the prime minister is a position, उससे पहले हम the का यूज करते हैं। principal the का यूज करते हैं उससे पहले। ठीक है, the CEO, the sun, these all are unique, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में यूनिक होते हैं, इसलिए हम उनसे पहले the का यूज करते हैं। इस सब के बाद में we are going to a slide where we have questions
और हमने जो आज पढ़ा है उसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई जस्ट रिसाइट एवरी क्वेश्चन। मैं आपके सामने हर एक क्वेश्चन को बोलने वाली हूँ और उसके बाद में वी विल सी कि हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल ऐड करते हैं। So it's like a quick test for you. My father is dash doctor. What will come before doctor? So if you all guys are correct, A will come before doctor. My mother is dash engineer. Engineer starting with E, it has vowel sound and it is singular, so we'll use N with it. Portugal is dash small country. So we'll use A with it. स्मॉल कंट्री सिंगुलर यूनिट है, एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, सो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। शी इज डैश ओल्ड लेडी, ओ से स्टार्ट हो रहा है, सो वी हैव टू यूज एन विद इट। आई एम रीडिंग डैश गुड बुक, देखिए सिंगुलर यूनिट है, उससे पहले ए का यूज होगा, मैं एक अच्छी किताब पढ़ रहा हूं। द एग्जाम टेक्स डैश आवर एंड हाफ। ओके, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होना चाहिए या हो गया होगा अभी तक। नाउ आर है, हमने अभी एग्जांपल्स में देखा कि आर से पहले क्योंकि हमारा एच साइलेंट होता है और हम प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं ओ से। ओके, वी कॉल इट आर। इन दैट केस हमारा यहाँ पे एन आएगा। द एग्जाम टेक्स एन आर एंड हाफ। हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? वी डोंट से कि एच साइलेंट एंड वी डोंट प्रोनाउंस इट हाफ, वी प्रोनाउंस इट हाफ। यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट नहीं है। ओके, सो साइलेंट नहीं है तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया और इसलिए हम यहाँ पे ए का यूज करेंगे। दे हैव गॉट डैश डॉग एंड डैश हॉर्स। डॉग एंड हॉर्स दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, साउंड कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर यूनिट है एंड काउंटेबल नाउन है। तो अ डॉग एंड अ हॉर्स। दिस इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। देखिए स्टार्ट यू से हो रहा है, but how would you pronounce it? Yeah, Y-O-U, consonant sound आ रहा है, so this is a unique opportunity. We'll not say this is an unique opportunity क्योंकि vowel sound नहीं है हमारे पास में, हमारे पास consonant sound है। Then she lives in dash big town, a big town. We cannot use the because द का यूज करना यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि वो अपने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर द केक आई नीड एन ऑरेंज एंड एन एग। दे आर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल। द सिटी ऑफ लंडन। आई टोल्ड यू किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, सो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लंडन प्रॉपर नाउन है, एक सिटी का नाम है, सो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऑन द लेफ्ट, इट्स लाइक अ फ्रेज ऑन द लेफ्ट, उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, द का तो यूज नहीं होगा ऑन द लेफ्ट, ठीक है। देन थॉमस इज माई फ्रेंड, अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन, सो उससे पहले पर्सन का नाम है, उससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सन इज शाइनिंग। आप बताइए इससे पहले द का यूज करना होगा या नहीं? द का यूज बिल्कुल करना होगा क्योंकि सन इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में और हमारे यूनिवर्स में। तो बेसिकली अभी तक हमें एक ही सन के बारे में पता है, सो अपने आप में यूनिक है, सो इससे पहले द का यूज किया जाएगा। डू यू प्ले डैश फुटबॉल? Is it going to sound good to you if I say do you play the football? No, right? So we are not using any article with it. Do you play football? It will be like that. ठीक है, किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स से पहले हम आर्टिकल का यूज बेसिकली नहीं करते। डैश फेमस एक्टर। हमें द और नथिंग में से एक ऑप्ट करना है, सो नथिंग। ओके, August is hot, again nothing. Okay, the Pacific Ocean एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, so we have to use the with it. The Republic of Portugal. Okay, इससे पहले हम द का यूज करेंगे। देखिए हालांकि हमने अभी पढ़ा कि हम कंट्रीज के नाम से पहले द का यूज नहीं करते, लाइक द इंडिया, द चाइना, इससे यूज नहीं होता, लेकिन जो भी हमारे कंट्रीज हैं जो हम एब्रीविएशंस में यूज करते हैं। ओके, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन,
यूएसएसआर, इनसे पहले हम द का यूज करते हैं। सो ऐसी कंट्रीज का नाम जो कि यूज होता है एब्रिविएशन की फॉर्म में, उनके पास में हम द का यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास डायरेक्टली पोर्टुगल आता तो हम पोर्टुगल से पहले द का यूज नहीं करते, पर यहाँ पे पूरा इसका एब्रिविएशन फॉर्म या उसका फुल फॉर्म आ गया रिपब्लिक ऑफ पोर्टुगल, देन वी हैव टू यूज द विद इट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज इट? Okay, I'll just leave it. I'm not able to see this. Have you got dash computer? What will you use with a computer? A, right? Yes. अब देखिए कंप्यूटर इस कन्वर्सेशन में वापस आ रहा है। एक बार हमने यूज किया, पहली बार हमने ए लगा दिया, पर वापस से रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हम उसके साथ द का यूज करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है या किसी सेंटेंस में एक नाउन दूसरी बार आती है तो पहली बार हम उसके रूल के अकॉर्डिंग ए या एन का यूज करेंगे एंड सेकेंड टाइम हम उसके साथ में द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वेयर इज द वाटर जग? वाई हमने यहाँ पे द का यूज क्यों किया? बिकॉज हम किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक वाटर जग की बात कर रहे हैं। ओके, इट्स इन द फ्रिज, अगेन द फ्रिज, द क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक फ्रिज में रखा हुआ है। इट्स नॉट दैट वी हैव 10 और 20 ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स और हम बोल रहे हैं किसी एक फ्रिज में रखी है, राइट? हम एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर की बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में ये यहाँ पे यूनिक है। देन आर यू डैश अमेरिकन? एन अमेरिकन, नेशनलिटी से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ओके, आई से आई एम एन इंडियन। आप लोगों ने भी कई बार बोला होगा दैट आई एम एन इंडियन। ओके, सो वी विल नॉट बी यूजिंग द विद दैट। नो, आई एम ब्रिटिश, we'll use no article with it. But I live in Washington, again no article with it. Okay, is she an old friend? Again we are using old with it, so we have to use n. All right, yes, she is an a good friend. good friend जी से start हो रहा है, consonant है, उससे पहले a का use करेंगे। Do you live in the countryside? No, I live in a small city called Derby. Are you staying at a hotel? Yes, hotel repeat हो रहा है, the hotel is nearby, near the train station. किसी पर्टिकुलर ट्रेन स्टेशन की बात की जा रही है और होटल उसके पास में है, होटल रिपीट हुआ इसलिए द का यूज किया, और ट्रेन स्टेशन जो है वो अपने आप में स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूज हो रहा है। डू यू हैव टाइम टू हेल्प मी? डू यू हैव टाइम टू हेल्प मी, उससे पहले हमें कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यस, आई हैव अबाउट, आर से पहले एन का यूज करना है। डू यू लाइक फ्लावर्स? we won't be using any article here. Yes, I do, I prefer roses but I like all flowers. उससे पहले भी कुछ नहीं आएगा। Does he have a good job? Yes, he does, he earns a good salary. Are you going to the bar? Yes, I am. No, I am going to home. Home से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। Alright, so here we have solved all the questions and I hope you have liked this lecture and you have understood the method. आपको A and D and all जो articles हैं उनके यूजेस समझ में आएंगे। Alright, so हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।